Okay. Riddhi Agarwal. Riddhi Agarwal. Yes, ma'am. Will you please put some light what we have done in the last class? Please don't take this much of time. Ma'am. Yes, go on, Riddhi. Ma'am, I wasn't present in the last. You wasn't present? Ma'am, I wasn't present. Ma'am, Yes. I wasn't there in the last class. No, you were not there. I've seen your attendance. It's okay. Okay, fine. Now I'll ask those people who were present in that class. Okay, Tisha Gombar. Tisha Gombar. She's not there in the class today? No, ma'am, she isn't there in the class. Okay. Srivalli. She's there in the class. I've seen her. Srivalli. Ma'am, Yeah. ma'am, Shivali just texted me that she can barely hear your voice because she has a severe network issues. So she can't hear you properly. Your voice is cracking there. So why she's not attending the class? Ask her to leave the class. Okay, ma'am, I'll tell her. Yeah. Just for the attendance, she's there in the class. I don't want her in the class if she's not able to hear me. Devansh Garg. Devansh Garg. Yes, ma'am. Yeah, please at least. I hope you might have heard what I taught in the last class. Ritika Singh. ठीक है बेटा, it's of no use teaching you people unless you will let me know what I've taught in the last class. ठीक है, you just see whatever I've taught. ये जितने मैंने इनको कहा है ना, देवांश गर्ग, ऋतिका, okay, please go through it and then again I will ask you, unless you will put some light on the chapter, I will not move on. It's of no use. मैं पढ़ाते जा रही हूँ, तुम लोग तो बस ऐसे आ रहे हो जैसे क्लास में, जैसे तुम लोगों को जस्ट अटेंडेंस लेना है. मैं ऐसा नहीं चलाऊंगी क्लास. I am not going to continue like this. Paridhi Bambani, am I right or wrong? It's only me who has to teach? No, ma'am. All of us have to participate. Exactly. तो पहले इन लोगों को देखने दो इन्होंने क्या पढ़ा है. इनको खुद को पता ही नहीं है इन्होंने पढ़ा क्या है. तो व्हाट इज द यूज, मैं क्या आगे बढ़ाऊं क्लास को. यस कशिश, यू वांट टू से समथिंग? Yes, 1 second. Sorry about that. I was asking that may I tell you what was done in the last class? I know, Kashish, it's only few students, handful of students who are actually hearing me in the class. It's Sheersh, Kashish, Paridhi, and of course this Naman Kankaria. ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं, बाकी का नाम मुझे ना पता नहीं है, क्योंकि किसी को भी बोलो तो बोलते मैम मैं एब्सेंट था क्लास में.
बाकी तो they are just coming and I do not know what are they doing in the class. I don't know what are they doing in the class. It's of no use teaching you people like this. I don't want to teach. मैं 10 चैप्टर में से 4 चैप्टर कराऊंगी बट प्रॉपर. मैं ऑलरेडी कितने चैप्टर्स करा चुकी तुम्हें पता है? आई एम गोइंग टू कंप्लीट द वन मोर चैप्टर टुडे. We have already done with the questionnaire and everything, right? Am I right, Kashish? Yes. I think we have started with the census and sample. That is the last topic of this chapter, collection of data. And after this, I'm going to start with the organization of data. I have already completed 3 chapters in your statistics and 3 chapters in your microeconomics. But तुम लोग को आता कहाँ है? मेरे खत्म करने से क्या है? अभी मैं तुम लोग को कुछ और भी दिखाने वाली हूँ. मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 हो गए. अच्छा 4 हो गए. सी 4 chapters हो गए DK और के अकॉर्डिंग. 4 in micro and this is the 3rd chapter we are doing of statistics. This I will complete today. This will get completed by today itself. Okay. ये आज ही खत्म हो जाएगा. कल से मैं अमर्त्य का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा शुरू करने वाली. पर मतलब क्या है मेरे इस सब खत्म करने का? यहाँ देखो क्लास में तुम्हारे स्विच ऑन योर कैमरास फर्स्ट. आई डोंट वांट टू टीच दिस स्क्रीन. करो, स्विच ऑन करो कैमरा. बाकी लोग अपने आप को ठीक करके स्विच ऑन करेंगे. Rhythm, you were also not there in the class, last class? No, ma'am. तो कैसे पता चलेगा बेटा मैं क्या पढ़ाऊंगी अभी? 2 days, there were 2 days holiday, right? Saturday it was off, Sunday it was off. मंडे को जब मैं क्लास में हूं तो मैं ये सुनूं, नो मैम आई वाज नॉट देयर इन द क्लास. Why will I give you the review of the last whatever the content I have taught you people? It's my duty or you have to review it yourself and come to the class. कि हाँ भाई मैम ने ये करवाया था, मैम इसके आगे करवाएंगी. नैतिक आ रहा है, नैतिक जा रहा है, नैतिक आ रहा है, नैतिक जा रहा है. चलो मैं इससे पहले क्लास शुरू कर रही हूँ. उससे पहले तुम लोगों को कुछ हमारी डीपीएससी कुछ पॉलिसी से अवगत करवा दूं जो नया नया पॉलिसी तुम लोगों के लिए बनाया गया. फिर मत बोलना कि मैम हमें पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था. देख लो, सुन लो और अपने आसपास जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर लेना. नाउ मोड ऑफ असेसमेंट फॉर ऑल पर्पस, ऑल अपकमिंग एग्जाम, जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनका मोड ऑफ असेसमेंट कैसे होने वाला. सी हियर, इट्स स्पेशली फॉर क्लास 11th. ओके, व्हाटएवर योर रिटन एग्जाम्स विल बी, जो भी होगा आपका रिटन एग्जाम, it is of 80 marks, 100 marks, 20 marks, 40% will be taken from your written exam, and there will be a viva which will be conducted. Suppose viva is of 50 marks, तो उसका 60% will be taken, यानी कि 60 plus 40 equal to 100. ठीक है. तो suppose यहाँ देखिए, suppose you have scored maximum 80 marks. ठीक है. आपने जो भी स्कोर किया है 32, 48 एंड इसका टोटल हो जाएगा. मार्क्स वट एवर यू हैव ऑप्टेंड, उसका मल्टीप्लीकेशन इस तरह से होगा. सपोज यू हैव ऑप्टेंड 60 मार्क्स आउट ऑफ 80, तो 60 into 40% डिवाइड बाय 100, तो यानी आपका जो 60 डिवाइड बाय 100 into 40%,
इसका जो 40% होगा दैट विल बी योर 24. समझ गए? वैसे ही 50 मार्क्स अगर आपका ओरल हुआ तो उसमें तुमने 40 मार्क्स स्कोर किया है, तो 40 मार्क्स का योर 60% विल बी योर 38, यानी कि 24 plus 38 equal to 62. This is the system what we are going to follow from your first test onwards. यानी कि अब आपके जो भी फर्स्ट यूटी आएगा उसमें 40% ऑफ योर written work and 60% will be the orals viva what we are going to conduct. ठीक है, हर एक बच्चे से कम 6 से लेकर 10 questions, around 6 to 10 questions will be asked from each and every child in the class. Minimum 5 questions will be there. Okay, now this is one, and this is for the offline. अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है, दैट इज इफ इट इज ऑनलाइन. जो मैंने करा वो दैट वाज फॉर ऑनलाइन. अगर सपोज इफ इट इज ऑफलाइन, then 70% will be taken for the your written test and 30% will be given for the viva. Okay, देखो 80 मार्क्स का पेपर है, 60 स्कोर किया, उसका 70% 42, 50 का वाइवा है, 40 स्कोर किया, उसका 30% 19, यानी कि 42 plus 19 equal to 61. Is it clear? मतलब टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से नहीं होगा जैसे 12th वाला का होगा. टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से ही होगा, +2 जिस तरह हो रहा है उन्हीं के हिसाब से होगा. पर आपका जो असेसमेंट है वो 40-60 का होगा. रिटर्न मार्क्स को 40, आपका जो रिजल्ट एनालिसिस होगा वो 40 मार्क्स का रिटर्न जाएगा और 60 मार्क्स का आपका वाइवा जाएगा. नाउ अब अटेंडेंस से रिलेटेड, बच्चे बहुत ज्यादा एब्सेंट रहते हैं. नाउ व्हाट इज द अटेंडेंस बेस? किस बेस पे आपको अटेंडेंस दिया जाएगा? द लीस्ट परसेंटेज ऑफ एनी सब्जेक्ट विल बी द बेस. आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर कम से कम अटेंडेंस दे रहे हो, जैसे सपोज आपने इकोनॉमिक्स में 90% दिया, अकाउंट्स में 90% दिया, आपने बीएसटी में 80% दिया, आपने इंग्लिश में 80% दिया, आपने फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ 50% दिया, तो आपका जो बेस जो बनेगा अटेंडेंस का दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ 50%. ओके, अब उस 50% के ऊपर देयर विल बी अ +5 मार्क्स. अगर आपके 90% एंड अबव हैं, मिनिमम आपका 85% हमारा अटेंडेंस होना चाहिए, और अगर 85% से ऊपर है तो +5 मार्क्स, +5% तो उसका 3 मार्क्स 63. अगर आपने 60 स्कोर किया है, अटेंडेंस आपका 90% है, तो आपको 5% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. तो 60% का 5% हुआ 3 नंबर, 63 मार्क्स. 35 का हो जाएगा +2, 37 मार्क्स. अब इसी तरह से अगर इफ यू हैव अ बिलो देन 85% ऑफ द अटेंडेंस, देन देयर विल बी डिडक्शन, 10% ऑफ द डिडक्शन व्हाटएवर द मार्क्स यू आर स्कोरिंग. ये समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 60% का 10% -8, 60 में से -8 गया तो 52. द सेम मैनर 35 मार्क्स अगर स्कोर किया है पर आपका अटेंडेंस 75% है तो -10, -8, अगेन 27%, 27 मार्क्स you will score. As it is आप फेल हो जाओगे. So this is the new policy which we all are going to follow from your coming up exams onwards. तो कष्ट करके अब अपने जो इर्द गिर्द स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि यहाँ लड़कों की मेरे पास लिस्ट आ गई है. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. परिधि प्लीज वेट एक मिनट. लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव मास्टर class 11th attendance. मैम जो अटेंड नहीं करते उनके लिए? हाँ, सबके लिए बेटा ये क्लास 11th का अटेंडेंस शीट है. This class is 11th चाणक्य ना? Yes, Yes, ma'am. We'll come to know how many students are there in our class. So
This is session Amartya, na? No, this is Chanakya. Amartya mein we have 32 students. And Chanakya mein we have 30 students. ज्यादा बता रहा है 28 plus 10 38. यहाँ पे हमारे पास 30 बच्चे हैं चाणक्य में. ठीक है. These are the students. भव्या पटेल, देवांश कर, देवांश. कितने लोगों को तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक. कुंज सोनी, मनन लाठ आता है, मुस्तान सिर्फ नहीं आता अब, नंदना पिल्लई, विदम, वंश गोयल, वेदांत पटेल, याशिका, दिव्या, गुरनूर, कशिश, परिधि, प्रियल, रिदम. We have 2 rhythm in this class. Ritika, Sanjana, शीर्ष शर्मा, श्रीवल्ली, श्रुति, प्रवीण ठाकर. कौन सा एक और रिदम कौन है? रिदम श्रीवास्तवा. इसको रिदम वालेचा एंड रिदम श्रीवास्तवा. रिदम वालेचा, she is a girl, and Rhythm Srivastava, he is a boy. He's a boy. Okay. यहाँ पे सारे बच्चों के नाम नहीं आए क्या? $37 students in science. ठीक है. चलो, ये 38 कैसे बता रहा है? Anyhow, ठीक है. So you have 30 students in the class and हमारे पास कितने आ रहे हैं आज की डेट में? We have 19 students. 11 बच्चे नहीं आ रहे हैं हमारी क्लास में. ठीक है. चलो, shall we move on to something और क्या करना है? ऐसे पढ़ाती रहूं मैं तुम लोगों को, मैं ही पढ़ाती रहूं और तुम लोग बस मजे करते रहो. मैडम तो पढ़ा ही रही है. मैडम आज नहीं पढ़ाएगी तो कल पढ़ाएगी. मैडम तो पढ़ा देगी. ओके. ठीक है. कशिश, जरा बताओ बेटा हमने क्या किया था? Ma'am, in the last class we started chapter 3 of statistics, census and sample methods of collection of data. We read about the definition of census, definition of sample, and we did the difference between both of them. There we ended our class. Okay. Now we have types of. ये मैंने तुम लोगों को नहीं बताया शायद. I'm just showing my presentation to you. मेरा presentation दिखाया था मैंने तुम लोगों को. This all we have done. हाँ मैम. Okay, this is a flow chart. ये बताया था मैंने. No ma'am. Types of sampling, हाँ. Ma'am, we discussed in brief. ये लास्ट में बताया. Okay, types of sampling. We have 2 types of sampling: probability sampling method and non-probability sampling method. The probability sampling method के बारे में बात करते हैं. We have 2 types of probability: restricted and unrestricted sampling method. And non-probability में we have purposive, quota and convenience. Restricted में we have stratified, systematic and cluster. ये तीनों उसके बहुत ही important sampling methods हैं. ठीक है. तो this is a whole chart of different types of sampling method. Now sampling
मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, जिससे मैंने कहा रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड, जैसे कहते हैं ना, ये देखो अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के अगेन वी हैव 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, लॉटरी मेथड, table of random numbers and exit polls. Now what is this table of random numbers or lottery method? Lottery method तो आप सबको पता होगा, what is lottery method? I hope you all know what is lottery method. Yes. Lottery method, it is all the items has been assigned in a smaller piece of paper and then it has been put into a ball. Okay, उस बाउल में डाल देते हैं एंड देन उसको पूरा शेफल करके फिर उसमें से कोई भी सैंपल्स हम निकालते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का एक बहुत खास ये है कि उसमें हर एक इंडिविजुअल, हर एक आइटम इज हैविंग ए इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। समझ रहे हो, हर एक आइटम जो है उसके चांस होते हैं सेलेक्ट होने के, राइट? दैट इज व्हाट इज अ रैंडम सैम्पलिंग। अब लॉटरी मेथड में भी when they are shuffling the items, तो उसमें जितने भी शफल होते हैं तो उसमें हर एक आइटम के चांस होते हैं getting selected in the item. Okay, now table of random numbers. In this random number, in this random numbers are arranged in rows and columns which are selected on the population size. जो नंबर्स है वो रैंडमली अरेंज किए जाते हैं रोज में और कॉलम्स में एंड फिर उसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, क्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, आइटम सेलेक्ट करते हैं। एग्जिट पोल्स, एग्जिट पोल्स जनरली हम लोग इलेक्शंस में इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करने के लिए वी जनरली यूज। आपने देखा होगा जो लोग पोलिंग कर बाहर निकलते हैं उन लोगों से, जितने भी टीवी चैनल्स वाले होते हैं उनसे पूछताछ करके उसके बेस पर दे कम टू एन डिसीजन, दे कम टू अ डिसीजन दैट हु इज गोइंग टू विन, किसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एग्जिट पोल्स। क्लियर? Yes, ma'am. एक बार रीड कर लो, इफ इट इज नॉट क्लियर प्लीज रीड इट आउट। हो गया? हैव यू पीपल रेड? हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Now I'm coming to the next. देखो, research population, random sampling. This is what is the random sampling. पूरे populations में हम क्या करते हैं, each and every item is equal having a chance to get selected. हम उसे अलग अलग तरीके से randomly select करते हैं। Now sampling method के अलग अलग और तरीके के, अभी हमने देखा रैंडम सैम्पलिंग, अब हम देखेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसको हम रिस्ट्रिक्टेड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। आई एम सो सॉरी। अब ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग आर अगेन डिवाइडेड। नॉन रैंडम सैम्पलिंग मींस in this all the units of the population do not have an equal chance of getting selected. यहाँ पर क्या है अपना रैंडम सैम्पलिंग में क्या था, everybody is having the chance of getting selected, but यहाँ पे क्या है, everyone is not having a chance of getting selected. अब now this is again classified into 3 parts, ठीक है? Judgment, purposive और deliberate sampling, quota sampling and convenience sampling. यहाँ पे देखिए जरा, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग नहीं करा है ना, सिस्टमैटिक अभी आएगा, चलो
पहले मैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग कराया, अब मैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग पहले करवाती हूँ। स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपल, इसको हम कहते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. नाउ इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग generally adopted, this method of sampling is generally adopted when population consists of different groups with different characteristics. According to this method of sampling, population is divided into different strata having different characteristics, and some of the items are selected from each strata so that the entire population gets represented, and it is called a mixed sampling because it is a combination of random and purposive sampling. ठीक है, इसको हम मिक्स सैम्पलिंग भी कहते हैं, इसको हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आइटम्स हैं दे ऑल हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम क्या करते हैं इसमें, वी आर ग्रुपिंग द आइटम्स इनटू देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली उन्हें ग्रुप करते हैं और हर एक कैरेक्टर में से वी सेलेक्ट द डेटा. ओके, नाउ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, हम सारे के सारे जो भी आइटम्स हैं, व्हाट वी डू, वी अरेंज दीज आइटम्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर. इट कुड बी न्यूमेरिकल फॉर्म, इट कुड बी इन अ जियोग्राफिकल फॉर्म, इट कुड बी इन अ ascending or descending order or in alphabetical form, and then we select the sample of every nth number. मतलब अगर हमने को 10th नंबर हमें लेना है तो हर एक 10th नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे. अगर हम कहेंगे we will take second नंबर तो हर एक second नंबर को we will select. एक और बाकी है, that is called a cluster sampling. इसके अंदर है कि नहीं पता नहीं, where you cluster or you make a group of the items. Organization, cluster sampling. में सब ऐसे दे दिया है. Okay, cluster sampling is also cluster sampling में क्या होता है कि they have been also arranged like stratified sampling. clusters में इसको लोग ना clusters of stars जैसे होते हैं, एक उसी तरह से इसमें भी आपके ग्रुप्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, और उस ग्रुप में से दे टेक आउट द सैंपल्स. इसे हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग. लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या मिक्स सैम्पलिंग में क्या होता है, उनको उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पे हम उनको अरेंज करके फिर हम उसमें से निकालते हैं. अब दूसरा हो गया आपका the next method is your non-probability sampling method. अब non-probability sampling method के 3 parts हैं, purposive, quota and convenience. Purposive, quota and convenience. Now purposive को हम deliberate sampling भी कहते हैं और judgmental sampling भी कहते हैं. Okay, purposive is also known as a judgmental और deliberate sampling. अब यहाँ पे क्या है, sample units are selected consciously by the investigator. Purposive or deliberate sampling, in which the investigator himself make the choice of the sample. इसमें क्या है, investigator is having the whole sole responsibility in his hand. ठीक है, उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली वो सैंपल चूज करता है. राइट, according to him, whatever the sample he is choosing, that will be the best and that will be the representative of the universe. Probability of getting selected is not equal. और यहाँ पे भी purposive sampling में भी क्या है कि आपका selection हो ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, आपका selection हो ऐसा जरूरी नहीं है ना. इसी में दूसरा पार्ट है आपका कोटा सैम्पलिंग. क्या हो गया, आपने पूरे आइटम्स को ग्रुप्स में और क्लासेस में डिवाइड किया, उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली
पर हर एक ग्रुप को आपने परसेंटेज अलॉट कर दिया। जैसे मैं एक बात कहूँ कि हमारे स्कूल में 2 ग्रुप्स है, एक है हमारा ग्रुप कॉमर्स का, एक है हमारा ग्रुप साइंस का, और एक है हमारा ग्रुप ह्यूमैनिटीज का। अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगी, साइंस में से 40% बच्चे निकाल लो, कॉमर्स में से 60% 50% बच्चे निकाल लो, और 10% बच्चे ह्यूमैनिटीज से निकालो। तो मैंने क्या किया, अलग अलग ग्रुप बनाया कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली, और अलग अलग ग्रुप में से अलग अलग परसेंटेज के सैंपल्स मैंने निकाले। बट यहाँ पर ये एक्सपेंसिव नहीं है, बट इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होना और पर्सनल बायस होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। इज इट क्लियर? Yes. This one is clear. अब convenience sampling क्या है? Convenience sampling is one of the very easiest sampling. क्या है इसमें कि जब भी इन्वेस्टिगेटर को मन किया बस चले गए और सैंपल कलेक्ट करके आ गए, कोई मेथड यूज नहीं करते हैं, इसमें कोई रिलायबिलिटी नहीं है, ये एक्सपेंसिव भी नहीं है और अनसाइंटिफिक है ये, राइट? तो वो अपने हिसाब से जो है बिना किसी टेक्निक के वो जो इन्वेस्टिगेटर है, ही इज कलेक्टिंग द इन सैंपल्स एंड कमिंग टू द कंक्लूजन। इसके अंदर जो भी कंक्लूजन आएगा दैट कुडंट बी अ बेस्ट कंक्लूजन एट ऑल। दिस इज व्हाट इज अ कन्वीनियंस। देखो उसने क्या किया, इतने सारे पॉपुलेशन है, बस इसी को कंसिडर किया, ऐसा नहीं किया या फिर इसी को कंसिडर कर ले या फिर इसी को कंसिडर कर लिया। समझ गए? नो, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 5 मिनट है ना, 5 मिनट। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब 2 तरह के एरर्स भी होते हैं इसमें। सैम्पलिंग एरर्स क्या होता है कि जो एक्चुअल हमारा वैल्यू है और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। अब नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? नॉन सैम्पलिंग एरर से जब भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो भी एरर्स क्रिएट होते हैं, हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाता है या इंफॉर्मेशन हम गलत डाल देते हैं, तो वो हम कहते हैं एरर्स इन नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन रिस्पॉन्स एरर की it occurs when interviewers is unable to contact person listed in the sample. इन्वेस्टिगेटर क्या है, उन लोगों को कांटेक्ट नहीं कर रहा है जो कि जिनका नाम आपके लिस्ट में है। सैम्पलिंग बायस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टिगेटर he becomes partial, he becomes biased, so he doesn't include the samples which actually should be included in the sampling method so that we can get a correct information. तो उसके वजह से भी आपके जो है नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्रिएट होते हैं। ओके, so this is very important, sampling and non sampling error. Sampling error मतलब the difference between the actual value and estimated value. Okay, it is possible to reduce, आप sampling error को reduce कर सकते हैं but non sampling errors को you cannot reduce. Sampling errors को कैसे reduce करोगे? If you will go on increasing the samples, okay, आपका वो reduce हो जाएगा। अब 2 बहुत important secondary source of data है, one is called the Census of India and the other is called the National Sample Survey Organization of India. ये दोनों ही सबसे important sources हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के। इनका मेन काम क्या है? देखो NSO का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1950 में थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये मेनली स्कूल एनरोलमेंट है, लिटरेसी रेट है, मैटरनिटी है, PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इन सब का सर्वे करते हैं। और सेंसस क्या है? हर एक 10 इयर्स में इंडिया या कंट्री का जो भी डेमोग्राफिक कंडीशन है, जिसके अंदर सेक्स रेशियो है, जिसके अंदर लिटरेसी रेशियो है, माइग्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सैनिटेशन है, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है, IMR है, ये सारे के सारे वो एनालाइज करते हैं एंड देन इट इज बीन analyzed, interpreted, and then the policies and plans are being formulated. So these are the 2 sources of secondary data. That is your first is called census and the other one is called NSSO, National Sample Survey Organization. So here I am completing my chapter. This chapter is now over. Okay, this whole chapter is over. एक बार फिर भी बुक निकाल के देख लेना. If anything is left, then please let me know.
According to my knowledge, I have completed the chapter. That is your third chapter is over, collection of data. And after your class will get over by evening or afternoon, I'll be sending 2 worksheets. पहला ही worksheet डालती हूँ. You please sit and do that worksheet. And this PPT also I'll be sharing with you all. Okay. Now tomorrow, before I start with the content, I want the whole collection of data should be repeated by you people through the presentation, but not by my presentation. It should be from your presentation. तो कल कौन put up करेगा? सबसे पहले होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा पूरा विथ क्वेश्चन एंड एवरीथिंग, एक वो पार्ट होगा. दूसरा होगा सेंसस एंड सैंपल, ये दूसरा पार्ट होगा. तो कल के लिए मुझे 2 वो बच्चे चाहिए who are going to conduct the class tomorrow. मैम वो वर्कशीट कल पुट अप करनी है, उसका कह रहे हो ना आप? नहीं, कल क्लास आपको पुट अप करना है अपनी तरफ से, वो बोल रही हूँ. वर्कशीट तो मैं भी डालूंगी तुम लोगों को. यू हैव टू सिट एंड परिधि, यू हैव ऑलरेडी गिवन वंस, राइट परिधि? नो नो. ओके, परिधि बंबानी, कशिश कापड़ी. कशिश, हैव यू गिवन द क्लास वंस PPT के? No ma'am, our class didn't have any presentations. Oh, your class didn't come up with that? Yes, okay, I have done with the Amartya. I believe tomorrow is the second time when I'm going to start it with. Okay, tomorrow Paridhi Bambani and Kashish Kapri, be ready with your presentation. Okay. Okay. Thank you very much. Have a nice day. Take care of yourself. Thank Yes, you. Kashish. Ma'am, I wanted to have a word with you. Can you stay back for a minute, please? Yeah. The rest can leave. Thank you, ma'am. Thank you, beta. God bless you. Mohit Chaudhary, leave. Devanshu wants to. No, let Pariti stay. Like we wanted to have. Naman Kankaria.